عزرا پہلا باب۔ اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں، اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا، سو اس نے اپنی مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں، اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں۔ پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے، وہی خدا ہے۔ اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو، تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں، اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے دیں۔ تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا، اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی اشیاء سے ان کی مدد کی۔ اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکد نصر یروشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیسس بصر کو دیا، اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں اور چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے 410 پیالے اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ظروف 5400 تھے۔ شیسیس بصر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے لے آیا۔ عزرا دوسرا باب۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکد نصر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے، یہ ہیں: اور زربابل، یشو، نہمیہ، سرایا، ریالہ، مردکی، بشلان، مسفار، بیگوئی، رہوم اور بانا کے ساتھ آئے۔ اسرائیل قوم کے مردوں کا شمار یہ ہے: بنی پر اوس 2172، بنی صفتیا 372، بنی ارخ 775، بنی پخت مواب جو یشو اور یواب کی اولاد میں سے تھے 2812، بنی ایلام 1254، بنی زتو 945،
बनी जकी 760, बनी बानी 642, बनी बबी 623, बनी अज़जाद 1222, बनी अदू नकाम 666, बनी बगवई 2056, बनी अदेन 454, बनी अतीर हिस्किया के घराने के 98, बनी बसी 323, बनी योरा 112, बनी हाशूम 223, बनी जिब्बार 95, बनी बैतलहम 123, अहले नतोफा 56, अहले अनतोत 128, बनी अजमाउत 42, करेत आरेम और कुफरा और बैरोत के लोग 743, रामा और जिब्बा के लोग 621, अहले मकमास 122, बैतिल और ऐ के लोग 223, बनी नबू 52, बनी मजबेस 156, दूसरे एलाम की औलाद 1254, बनी हेराम 320, लौद और आदीद और अनो की औलाद 725, यरहू के लोग 345, सनाहा के लोग 3630। फिर काहिनों यानी यशु के खानदान में से यदुआ की औलाद 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017, और लावियों यानी होदाव्या की नस्ल में से यशु और कदमियल की औलाद 74, गाने वालों में से बनी आसफ 128, दरबानों की नस्ल में से बनी सलूम, बनी अतीर, बनी तलमोन, बनी अकोब, बनी खतीता, बनी सोबी, सब मिलकर 139, और नतनाइम में से बनी जेहा, बनी हसूफा, बनी तबोत, बनी करोस, बनी सीहा, बनी फदोन, बनी लिब्ना, बनी हिजाबा, बनी अकोब, बनी हिजाब, बनी शमली, बनी हेनान, बनी जदील, बनी हिजर, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकोदा, बनी जजाम, बनी ओजा, बनी फासेख, बनी बसी, बनी असाना, बनी मौनेम, बनी नफीसाइम, बनी बकबूक, बनी हकूफा, बनी हुरहोर, बनी बसलोत, बनी महीदा, बनी हर्षा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी मतमा, बनी तामहा, बनी निजाहा, बनी खिताफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद, बनी सोती, बनी हसफरुत, बनी फरोदा, बनी युला, बनी दरकोन, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फखरोत, जाबाइम, बनी अमी, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392, और जो लोग तल मिला और तल हरसा और करोब और अदान और अमीर से गए थे, सो ये हैं। पर ये लोग अपने आबाई खानदान और नस्ल का पता नहीं दे सके कि इस्राएल के हैं या नहीं, यानी बनी दिलाया, बनी तौबिया,
बनी नकोदा 652, और काहिनों की औलाद में से बनी हबाया, बनी हकोस, बनी जजरली, जिसने जेलादी बजरली की बेटियों में से एक को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान, जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे, ढूंढी पर ना पाई। इसलिए वो नापाक समझे गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि जब तक कोई काहिन औरेमो तैमेम लिए हुए ना उठे, तब तक वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं। सारी जमायत मिलकर 42,360 की थी। इनके अलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। उनके घोड़े 736, उनके खच्चर 245, उनके ऊंट 435, और उनके गधे 6,720 थे। और आबाई खानदानों के बाज सरदारों ने, जब वो खुदावंद के घर में जो यरूशलेम में है आए, तो खुशी से खुदा के मस्कन के लिए हदिये दिए, ताकि वो फिर अपनी जगह पर तामीर किया जाए। उन्होंने अपने मकदूर के मुआफिक काम के खजाना में सोने के 61,000 दिरहम और चांदी के 5,000 मना और काहिनों के 100 पैरहन दिए। सो काहिन और लावी और बाज लोग और गाने वाले और दरबान और नतनीम अपने अपने शहर में, और सब इस्राएली अपने अपने शहर में बस गए। अज़रा 3 बाब। जब 7वां महीना आया और बनी इस्राएल अपने अपने शहर में बस गए, तो लोग यकतन होकर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तब यशू बिन योसदक और उसके भाई जो काहिन थे, और जुरबाबल बिन सालतियल और उसके भाई उठ खड़े हुए, और उन्होंने इस्राएल के खुदा का मज़बा बनाया, ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाएं, जैसा मर्दे खुदा मूसा की शरीयत में लिखा है। और उन्होंने मज़बा को उसकी जगह पर रखा, क्योंकि उन अतराफ की कौमों के सबब से उनको खौफ रहा, और वो उस पर खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां, यानी सुबह शाम की सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। और उन्होंने नविश्ता के मुताबिक खैमों की ईद मनाई, और रोज की सोख्तनी कुर्बानियां गिन गिन कर, जैसा जिस दिन का फर्ज था, दस्तूर के मुआफिक चढ़ाई। उसके बाद दायमी सोख्तनी कुर्बानी और नए चांद की और खुदावंद की उन सब मुकर्रा ईदों की, जो मुकद्दस ठहराई गई थीं, और हर शख्स की तरफ से ऐसी कुर्बानियां चढ़ाईं जो रजा की कुर्बानी खुशी से खुदावंद के लिए गुजरानता था। 7वें महीने की पहली तारीख से वो खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने लगे। पर खुदावंद की हैकल की बुनियाद हनूज डाली न गई थी, और उन्होंने मैमारों और बढ़इयों को नकदी दी, और सैदानियों और सौरियों को खाना पीना और तेल दिया, ताकि वो देवदार के लट्ठे लबनान से योफा को समुंदर की राह से लाएं, जैसा उनको शाह फारस खौरस से
परवाना मिला था। फिर उनके खुदा के घर में, जो यरूशलेम में है, आ पहुंचने के बाद दूसरे बरस के दूसरे महीने में ज़रुब्बाबेल बनी सालतियेल और यशू बिन योसदक ने और उनके बाकी भाई काहनों और लावियों और सबों ने, जो असीरी से लौटकर यरूशलेम को आए थे, काम शुरू किया। और लावियों को, जो 20 बरस के और उससे ऊपर थे, मुकर्रर किया कि खुदावंद के घर के काम की निगरानी करें। तब यशू और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे, जो यहूदा की नस्ल से थे, मिलकर उठे कि खुदा के घर में कारीगरों की निगरानी करें। और बनी हंदाद भी और उनके बेटे और भाई, जो लावी थे, उनके साथ थे। सो जब मैमार खुदावंद की हैकल की बुनियाद डालने लगे, तो उन्होंने काहिनों को अपने अपने पैरहन पहने और नरसिंगे लिए हुए, और आसिफ की नस्ल के लावियों को झांझ लिए हुए खड़ा किया कि शाह इस्राएल दाऊद की तरतीब के मुताबिक खुदावंद की हम्द करें। सो वो बाहम नौबत बनौबत खुदावंद की सताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कर कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इस्राएल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे, तो सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन काहिनों और लावियों और आबाई खानदानों के सरदारों में से बहुत से उम्र रसीदा लोग, जिन्होंने पहले घर को देखा था, उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई, तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे और बुथेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सो लोग खुशी की आवाज के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज न कर सके, क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी। अज़रा चौथा बाब। जब यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि वो जो असीर हुए थे, खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए हैकल को बना रहे हैं, तो वो ज़रुब्बाबेल और आबाई खानदानों के सरदारों के पास आकर उनसे कहने लगे कि हमको भी अपने साथ बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे खुदा के तालिब हैं, जैसे तुम हो। और हम शाह असोर असरहदोन के दिनों से, जब हमको यहाँ लाया, उसके लिए कुर्बानी चढ़ाते हैं। लेकिन ज़रुब्बाबेल और यशू और इस्राएल के आबाई खानदानों के बाकी सरदारों ने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं है कि हमारे साथ हमारे खुदा के लिए घर बनाओ, बल्कि हम आप ही मिलकर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए उसे बनाएंगे, जैसा शाह फारस खोरस ने हमको हुक्म दिया है। तब मुल्क के लोग यहूदा के लोगों की मुखालिफत करने और बनाते वक्त उनको तकलीफ देने लगे, और शाह फारस खोरस के जीते जी, बल्कि शाह फारस दारा की सल्तनत तक उनके मकसूद को बातिल रखने के लिए उनके खिलाफ मशीरों को उजरत देते रहे। और अख्सोरिस के अहदे सल्तनत, यानी उसकी सल्तनत के शुरू में, उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों की शिकायत लिख भेजी। फिर अर्तख शाश्ता के दिनों में
बिशलाम और मित्रदात और ताइबिल और उसके बाकी रफीकों ने शाह फारस इर्तकशाश्ता को लिखा। उनका खत इरामी हरूफ और इरामी जुबान में लिखा था। रहोम दीवान और शमसी मुंशी ने इर्तकशाश्ता बादशाह को यरूशलेम के खिलाफ यूं लिखा। सो होरेम दीवान और शमसी मुंशी और उनके बाकी रफीकों ने जो दीना और अफारस्तखा और तरफेला और फारिस और अरेक और बाबल और सोसन अदरादा और आलैम के थे, और बाकी उन कौमों ने जिनको उस बुजुर्गो शरीफ असनफर ने पार लाकर शहरे सामरिया और दरिया के इस पार के बाकी इलाका में बसाया था, वगैरह वगैरह इसको लिखा। उस खत की नकल जो उन्होंने अर्तखाशास्ता बादशाह के पास भेजा ये है। आपके गुलाम यानी वो लोग जो दरिया पार रहते हैं वगैरह बादशाह पर रोशन हो कि यहूदी लोग जो हजूर के पास से हमारे दरमियान यरूशलेम में आए हैं, वो उस बागी और फसादी शहर को बना रहे हैं। चुनाचे दीवारों को खत्म और बुनियादों की मुरम्मत कर चुके हैं। सो बादशाह पर रोशन हो जाए कि अगर ये शहर बन जाए और फसील तैयार हो जाए तो वो खैराज चुंगी या महसूल नहीं देंगे, और आखिर बादशाहों को नुकसान होगा। सो चूंकि हम हजूर के दौलत खाना का नमक खाते हैं और मुनासिब नहीं कि हमारे सामने बादशाह की तहकीर हो, इसलिए हमने लिखकर बादशाह को इतला दी है ताकि हजूर के बाप दादा के दफ्तर की किताब में तफ्तीश की जाए, तो उस दफ्तर की किताब से हजूर को मालूम होगा और यकीन हो जाएगा कि ये शहर फितना अंगेज शहर है, जो बादशाहों और सूबों को नुकसान पहुंचाता रहा है, और कदीम जमाना से उसमें फसाद बर्पा करते रहे हैं। इसी सबब से ये शहर उजाड़ दिया गया था, और हम बादशाह को यकीन दिलाते हैं कि अगर ये शहर तामीर हो और इसकी फसील बन जाए तो इस सूरत में हजूर का हिस्सा दरिया पार कुछ न रहेगा। तब बादशाह ने रोहोम दीवान और शमसी मुंशी और उनके बाकी रफीकों को जो सामरिया और दरिया पार के बाकी मुल्क में रहते हैं, ये जवाब भेजा कि सलाम वगैरह जो खत तुमने हमारे पास भेजा है वो मेरे हजूर साफ साफ पढ़ा गया, और मैंने हुक्म दिया और तफ्तीश हुई और मालूम हुआ कि इस शहर ने कदीम जमाना से बादशाहों से बगावत की है, और फितना और फसाद उसमें होता रहा है। और यरूशलेम में जोरावर बादशाह भी हुए हैं, जिन्होंने दरिया पार के सारे मुल्क पर हुकूमत की है, और खैराज चुंगी और महसूल उनको दिया जाता था। सो तुम हुक्म जारी करो कि ये लोग काम बंद करें और ये शहर ना बने जब तक मेरी तरफ से फरमान जारी ना हो। खबरदार, इसमें सुस्ती ना करना। बादशाहों के नुकसान के लिए खराबी क्यों बढ़ने पाए। सो जब अर्तखशास्ता बादशाह के खत की नकल रोहोम और शमसी मुंशी और उनके रफीकों के सामने पढ़ी गई, तो वो जल्द यहूदियों के पास यरूशलेम को गए और जबर और जोर से उनको रोक दिया। तब खुदा के घर का
جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا، اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔